good morning to all the students out there. I welcome you all. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12 Commerce and my subject is Organization of Commerce and Management. These days I am teaching you topics from chapter number 1, Principles of Management. Now let's see the content part. The topics which are going to be covered in this session. The first is I will be explaining you about the introduction to F.W. Taylor. He is the other management theorist and he is a management theorist of scientific management. And the next is principles of scientific management. So we will see some principles given by F.W. Taylor. Let's move towards and see who is F.W. Taylor. So he is Frederick Winslow Taylor. He is called as the father of scientific management. F.W. Taylor has given some principles. Now we will see a brief introduction about F.W. Taylor. Like he was born in 20 March 1856 till 21st March 1915. He was known as an American mechanical engineer and he improved industrial efficiency. He was also regarded as father of scientific management and he was one of the management consultants, and that's why he is sometimes called as father of scientific management. According to F.W. Taylor, there is always a one best way for doing the job. हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट और देखेंगे जो टेक्स्ट बुक पे है एक्चुअली. He was an American who started his career as a machinist in Midvale Steel Works, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress, he rose to the position of the chief engineer. He introduced his observation and experiments based on scientific data. His approach towards management is called as scientific management. उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ अप्रोचेस किए जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर्स मैनेजमेंट थियरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. इनकी जो थियरी है वो कम्प्लीटली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है. इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू टेलर, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumb and a trial and error approach. टेलर के मुताबिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व साइंटिफिक तरीकों से किया जाना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब या फिर ट्रायल एंड एरर अप्रोच के हिसाब से. So he emphasized to use more on scientific techniques or scientific methods instead of trial and error methods. Now we will see a definition of scientific management given by Frederick Winslow Taylor. Now this definition is very important, जो एग्जाम में लिखना भी बहुत ज़रूरी है. So F.W. Taylor कहते हैं कि scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing that they do it in the best and cheapest manner. F.W. Taylor ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हो. What you want your men to do exactly. उसके बाद ये देखना कि आपके लोग किसी काम को अच्छे ढंग से और अच्छे तरीक़ों से उस काम को पूरा करें. सो दिस इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट एज पर F.W. टेलर. पहले तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या काम करवाना चाहते हो और उसके बाद अपने लोगों को चेक करना कि उन्होंने काम अच्छे से किया है या नहीं किया है. Now we will see the principles given by F.W. Taylor. There you can see there are 6 types of principles
given by F.W. Taylor. So, the first principle is science, not rule of thumb. His second principle is harmony, not discord. Third principle says mental revolution. The fourth on the left side says cooperation, not individualism. Then the fifth one is division of responsibility. And the last principle given by F.W. Taylor is development of employee and employer for greater efficiency and maximum efficiency and maximum prosperity. It should be prosperity. Now we will start with our first principle of scientific management. The first principle says that a management should be based on science, not rule of thumb. The first point says in order to increase organizational efficiency, किसी organization में अगर काम अच्छे ढंग से होना चाहिए तो उसके लिए रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड. ये जो रूल ऑफ थंब मेथड है इसकी जगह पर दूसरे मेथड्स लेके आने चाहिए. इस मेथड को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए with the methods developed through scientific analysis of work. वो सारे तरीके जो साइंटिफिक एनालिसिस से खोज किए गए हैं, वो सारे मेथड्स को, उन सारे तरीकों को हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू वांट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज़ रूल ऑफ थंब? हम ये जो वर्ड बार बार पढ़ रहे हैं रूल ऑफ थंब, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? इसका मतलब है द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर. रूल ऑफ थंब का एग्जैक्टली मतलब ऐसा है कि these are not strictly accurate and reliable for every situation. Rule of thumb method अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हर बार एक्यूरेट नहीं होता है और ना ही ये परफेक्ट होता है. कई बार इस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं. इसीलिए F.W. टेलर चाहते हैं कि हम इस मेथड को थोड़ा हटाकर इसकी जगह साइंटिफिक एनालिसिस वाला मेथड इस्तेमाल करें. साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ज़रा डिटेल में जाकर एनालिसिस करना, डिटेल में जाकर उसे स्टडी करना, खुद से क्वेश्चन करना, ये ऐसा है तो क्यों है, इसका आंसर ऐसा हो सकता है क्या या वैसा हो सकता है. तो सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करना, दैट इज़ कॉल्ड एज साइंटिफिक एनालिसिस. जो थंब डिसीजंस हैं, ये जो थंब के हिसाब से लिए हुए फैसले हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर. ये मैनेजर के खुद के जजमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं. सो जब मैनेजर अपने खुद के जजमेंट के हिसाब से कोई फैसला लेता है तो उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब मेथड. Now Taylor insisted upon scientific method for every small work. F.W. टेलर ने इंसिस्ट किया है, इस बात पर जोर डाला है कि किसी भी छोटे से छोटे काम को करने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error methods. F.W. टेलर कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें बेस्ट वे इस्तेमाल करना चाहिए और वो बेस्ट वे हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब पहले हमने उस काम का साइंटिफिक एनालिसिस किया हुआ हो. सो साइंटिफिक एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का डिटेल में जाकर उसकी जांच करना या उसका एग्जामिन करना. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी प्रॉब्लम के बारे में पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रीज़न्स पता करते हैं, खुद से हम लोग जांच पड़ताल करते हैं ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई या क्या हो सकती थी. बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करना, प्रॉब्लम का पता करना, उसके बाद उस पर सॉल्यूशंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, इसे कहते हैं साइंटिफिक एनालिसिस करना. सो F.W. टेलर इसी बात पर जोर डालते हैं कि चाहे छोटे से छोटा काम हो, हमें उसके बारे में डिटेल में स्टडी करके ही
उसके लिए कोई बेस्ट मेथड निकालना चाहिए या बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, ना कि हम किसी चीज़ के ऊपर बार बार ट्रायल और एरर मेथड अपनाएं, तो उससे टाइम वेस्ट भी होता है और परफेक्ट आंसर्स नहीं आ पाते हैं। Standard required time and standard output should be defined by the manager. मैनेजर को एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट बताकर देना चाहिए कि इतने वक्त में आपको ये काम करना है और इसका रिजल्ट ऐसा ऐसा आना चाहिए। This will help in saving time and energy and will result into expected standard output. अगर मैनेजर सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को बताकर देता है, तो इससे टाइम भी सेव होता है, साथ साथ एनर्जी भी सेव होती है, एंड इट विल रिजल्ट इनटू बेस्ट आउटपुट और बेस्ट रिजल्ट्स। सो दिस प्रिंसिपल वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, नॉट रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड्स को दूसरे शब्द में रूल ऑफ थंब मेथड भी कहा जाता है। Now we will see our second principle of management, that is harmony, not discord. Now meaning of harmony is आपस में relations अच्छे होना, smooth relations होना, that is harmony. That there are harmonious relationship between me and you. There should not be any discord. Discord मतलब किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होना, किसी बात को जब हम नहीं मानते हैं तो आपस में मतभेद हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। सो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप्स होने चाहिए, आपस में रिलेशंस मधुर होने चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, ना कि हर बात पर डिसअग्री हो रहे हैं, लोगों को बात आपकी पसंद नहीं आ रही है या लोग बार बार बात के लिए मना कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज हार्मनी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। इस प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वहाँ के कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच में रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, रिलेशंस अच्छे होंगे, तो किसी भी तरह के मतभेद होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी मिनिमाइज्ड। The C point says perfect understanding between employees and management will help in। जब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है दोनों के बीच में, तो वहाँ पर हेल्दी वर्क क्रिएट किया जा सकता है, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, एंड जिसकी हेल्प से डिज़ायर्ड गोल्स कैन बी अचीव्ड, दैट इज़ सक्सेस। जहाँ पर लोग मिलजुल के काम करेंगे तो वहाँ पर गोल्स हासिल करना आसान हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट सेज ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन को अपने कर्मचारियों के प्रोग्रेस के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, उनका भी विकास हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, सो एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करते रहने चाहिए। सो देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। Now we will see the third principle of management. This is mental revolution. Now mental, everybody knows it is related to your mind. हमारे दिमाग में किस तरह के चेंजेस होते हैं, कई बार बदलाव होते हैं, सो देर इज़ ऑलवेज अ रेवोल्यूशन इन आवर माइंड। नाउ लेट्स सी कि F.W. टेलर क्या बताना चाहते हैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। टेलर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। F.W. टेलर ही इस मुद्दे को सामने लेकर आए, जिसे हम मेंटल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन, इस प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो रहता है चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। हमने पिछले वाले पॉइंट में हार्मनी के बारे में पढ़ा था कि दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर बात चल रही है एटीट्यूड की, कि दोनों के व्यवहारों में भी फ़र्क होना चाहिए, दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति हमेशा थोड़ा चेंज होना चाहिए।
लाइक मन में हमेशा गुस्सा नहीं होना चाहिए या मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए. देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द एटीट्यूड. एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजमेंट की इज्जत करनी चाहिए, वैसे ही मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. The C point says both should realize their equal importance in the organization. दोनों को इस बात को समझना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है. बिना एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मैनेजमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता. तो उन दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप दोनों के दोनों यहाँ पर ज़रूरी हो. यू बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए. द डी पॉइंट सेज दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए सो दैट गोल्स कैन बी अचीव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. द फिफ्थ पॉइंट सेज दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, देयर इज़ प्रॉपर कोऑपरेशन, व्हेन द रिलेशंस आर हार्मोनियस, तो फाइनली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, साथ में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमाएगा. देयर विल बी मोर प्रॉफिट अर्निंग. सो जब रिश्ते अच्छे हैं, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी अच्छा होता है, साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है. So this was about mental revolution. I hope you understood all the three types of principles given by Henry Fayol. So till then, we will see the next three principles in the next slide. Till then, take care, stay happy, and bye-bye.